ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ। ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सुख नाही रे हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना। सुख नाही हर भगत बिना। जीत जन्म रतन अमोलक। जीत जन्म रतन अमोलक। साध संगत जप इक खिना। साध संगत जप इक खिना। सुख नाही रे हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना। जीत जन्म रतन अमोलक। जीत जन्म रतन अमोलक। साध संगत जप इक खिना। साध संगत
ਜਪ ਇਕ ਕਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਨਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਨਤਾ ਬਿਨੋਦ ਛੋੜ ਗਏ ਬਹੁ ਲੋਗ ਭੋਗ ਛੋੜ ਗਏ ਬਹੁ ਲੋਗ ਭੋਗ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੰਗ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੰਗ ਤਿਆਗ ਚੱਲਿਓ ਤਿਆਗ ਚੱਲਿਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਜੀਤ ਜਨਮ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਜੀਤ ਜਨਮ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇਕ ਕਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇਕ ਕਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਹਰ ਭਗਤ
तुद बिन कौन बुझाए, 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 तुद बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। तुझ बिन कौन आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधिक सियाणे केते, तुझ बिन कवन कहाए, तुझ बिन कवन कहाए।
सिद्ध साधिक सियाणे केते तुझ बिन कवन कहाए, तुझ बिन कवन कहाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। ओ आत्म धाम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। आत्म धाम संसारा, साचा खेल तुम्हारा। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुनिया, ये संसार, ये सृष्टि, वाणी कह रही है, एक खेल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा गहरा शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ी गहरी विचार है यहाँ पर। ये दुनिया एक खेल है, एक तमाशा है, पर इस खेल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या यूं कह लें कि कोई नहीं समझ सकता, और केवल वो समझ सकता है जिसको वो समझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक खेल चल रहा है मैदान पर। खेलने वाले की दृष्टि और है, देखने वाले की और है। हम बैठे टीवी पे देख रहे हैं, मानो क्रिकेट मैच है। हमारी दृष्टि में कुछ और है, खेल रहा है, खेलने वाले की सोच कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर असल में जो खेल है वो किसी को नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर ये बात कह देते हैं ना कि ये मैच फिक्स है, शायद हो भी। कहने का भाव ये, असल भाव इस खेल का वही समझ सकता है जो इस खेल को खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए। सिद्ध साधिक सियाणे केते तुझ बिन कवण कहाए। कोई सियाणा है, कोई ज्ञानी है,
पर उसके अंदर जो सियाणप है, जो ज्ञान है, वो कहाँ से आई? यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे बिना वो सियाणा कहाँ, तेरे बिना ज्ञानी कहाँ? जब तक इंसान के अंदर गुरु की मत है, लोग उसकी वाहवाही करते हैं। गुरु की मत हट गई, वही लोग उसकी निंदा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है बड़ा, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मत समझना कि अपनी मेहनत से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे मत समझना कि अपनी मेहनत से है, इसके पीछे उसकी कृपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत तो रोड पर मजदूर जो करता है, पत्थर तोड़ने वाला, उससे ज्यादा कौन कर लेगा? उसे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसकी कृपा का अर्थ क्या है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदर, सिमरन में अभी प्रमाण सुन रहे थे ना, नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुद बिन कौन बुझाए। इस खेल को केवल वो समझ सका है जिसके ऊपर पूरे महापुरुषों की कृपा हो, भाव गुरु की कृपा हो। नहीं तो हम सब बाजी हार कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काल बिकाल पए देवाने, माने राख्या गुरु ठाए। इस काल ने बड़ों बड़ों को दीवाना कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आने जाने के चक्कर में मत मारी गई है, बाणी कह रही है, पर उसे सही रास्ता पता चल गया है जिसे गुरु ने सही रास्ता बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बार बार इशारा ये हो रहा है कि तुद बिन कौन बुझाए। ये जो खेल है संसार का, केवल और केवल वही समझ सकता है जो स्वार्थ से ऊपर उठा हो, मोह से ऊपर उठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक जंगल है, जंगल में एक शिकारी गया। वहां पर बैठ के हिसाब लगा रहे, इतने जानवर पकड़ कर बेचूंगा तो कितना धन मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी जंगल में एक लकड़हारा गया, लकड़ी काटने वाला। वो लकड़ी गिनने लग गया, इतनी लकड़ी बेचूंगा तो कितना धन मिलेगा। जंगल वही है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वहां पर एक चित्रकार चला गया, पेंटिंग बनाने वाला। इतना खूबसूरत जंगल, इतना खूबसूरत दृश्य, अगर मैं इसकी पेंटिंग बनाकर बेचूंगा तो कितना धन कमाऊंगा। तीनों गए हैं, पर तीनों को एक ही जंगल को देखने का तरीका अलग अलग है। वजह क्या है? क्योंकि हमारे देखने में स्वार्थ छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु की वाणी को ही ले लो, एक ही शब्द होता है, हर आदमी अलग अलग अर्थ करता है। अब अभी शब्द का जो मैंने अर्थ किया है, कोई दूसरा कोई आएगा वो उसके और अर्थ करेगा। इसकी बात को गहराई को समझना। संगत ने बेनती की थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि इस गुरु की वाणी का अर्थ कर जाओ, ताकि लोग अर्थ का अनर्थ ना करें, गलत मतलब ना निकाले वाणी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जवाब दिया था, नहीं, ये वाणी वो गहरा समुद्र है जिस पर जो जितना गहराई में जाएगा उतना मोती निकाल कर ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतना कीमती मोती निकाल कर ले आएगा। जितनी गहराई में कोई विचार करेगा, उतनी गहराई से उतना कीमती मोती निकाल कर ले आएगा। ये वाणी वो अथाह सागर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमने अर्थ कर दिया तो लकीर खिंच जाएगी। बात को समझना। अभी एक ही गुरबाणी है। दास यहां पर प्रमाण सुनाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जो सब में एक खुदा कहते हो तो क्यों मुर्गी मारे, पर खाने वाले के पास अपने प्रमाण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु वो कहते जेते दाने आने के जिया बाजना कोई, जिसने जो लेना होता है वो ले लेता है उसमें से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो असली अर्थ क्या है वाणी के?
समझना, जंगल एक ही है, हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण है। वजह क्या है? हम जो अर्थ करते हैं उसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा है, इसलिए हम उस हिसाब से अर्थ करते हैं। मैं नहीं खाता हूं, मैं वो शब्द ढूंढ लेता हूं जिसमें लिखा है कि नहीं खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जो नानक। खाते हैं वो ढूंढते हैं बैठकर, कहीं पर कोई पंक्ति मिल जाए जिसमें गुरु साहब जी ने इशारा किया हो कि खा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी एक ही है, हम अर्थ अलग अलग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। असली अर्थ क्या है? असली अर्थ वो कर सकता है जो स्वार्थ से ऊपर उठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए महापुरुषों की संगत की बात की है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, पूर्ण महापुरुष, बाबा आनंद सिंह जी जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले जैसे, संत ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले, ये जब वाणी का अर्थ करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। फिर वो सच कहते हैं जो वाणी कहती है, चाहे वो सच उनके अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस खेल को समझना हमारे लिए नामुमकिन है। समझ सकते हैं, केवल एक तरीका है। क्या? सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास एक महाज्ञानी आ गया कोई, जिसने बहुत वाणी के अर्थ किए। कहने लगा व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण होता है ना, ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से इस पंक्ति का ये अर्थ निकलता है, इस पंक्ति का ये अर्थ निकलता है। महापुरुषों ने इतना प्यारा जवाब दिया साथ में। कहने लगे हमें नहीं पता व्याकरण के हिसाब से इस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है, हमने तो व्याह किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने तो वाणी से व्याह किया है। व्याह मतलब शादी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने तो गुरु से शादी की है। इसका भाव, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। हमने वाणी से, गुरु से शादी की है। शादी का मतलब घरवाली अगर गुरुमुख है, पतिव्रता है, उसको अपने पति में कोई दोष दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे अपने पति की बड़ी ज्यादा से ज्यादा वड्याई करनी में खुशी मिलती है। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे वाणी के हम वो अर्थ निकालते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा गुरु की उस्तत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह है स्वार्थ से ऊपर उठकर। छोटा सा दृष्टांत है। बेटा पूछता है माँ को, माँ पिताजी कहाँ? माँ कहती बेटा जब तू छोटा था ना तो तेरे पिताजी विदेश चले गए थे, परदेश, धन कमाने के लिए। उन्होंने कहा था इतने सालों बाद मैं वापस आऊंगा धन कमाकर। आने ही वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुराने जमाने की बात है, ना कोई तस्वीर ना कुछ। बेटा जिद करके चला गया, मैं पिताजी को लेकर आता हूं। सफर तय करते करते बीमार पड़ गया, बरसात में भीगकर बहुत बीमार पड़ गया। एक धर्मशाला में रात को उसने आसरा लिया, कमरा लिया, उसमें रुक गया। पास के कमरे में एक बहुत बड़ा सेठ रुका हुआ है जिसके कई नौकर चाकर हैं। अब ये बीमार है, यहां पर खांस रहा है रात को। सेठ परेशान हो रहा है कि भाई कौन खांस रहा है, इसे चुप कराओ। नौकर आते हैं, इसे डांटते हैं खांस मत। अब ये कैसे रुके? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मैं बीमार हूं, खांसी रुक नहीं रही, मेरी मजबूरी है। जब खांसी ना रुकी तो सेठ ने नौकरों से कह के इसे धक्के मरवाकर भरी बरसात में धर्मशाला से बाहर निकलवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूरी रात भीगता रहा, बीमार पड़ के सुबह तक मर गया। सेठ जा रहा है सुबह उठकर धर्मशाला से, देखता है कोई मर गया है। पूछता कौन? कहने लगा जिसे आपने बाहर निकाला था ना रात को, वो मर गया। सेठ कहता चलो ठीक है। घर चला गया। और ये सेठ कौन था? इसी लड़के का पिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर गया, घरवाली से पूछा बेटा कहाँ है? तो कहते आपको लेने गया था। जब सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा दिखाई देता है, वो ऐसा है।
गिर पड़ा धरती पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दौड़ कर गया उसी धर्मशाला के बाहर, अपने बेटे को छाती से लगा के रो रहा है, पिट रहा है। क्या मतलब निकलता है इस दृष्टांत से? विचार करो। जब तक उसे पता नहीं था कि मेरा बेटा है, ध्यान देना, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मर रहा है। और जैसे ज्ञान हुआ कि मेरा पुत्र है, रोना पिटना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तकलीफ कहां पर है संसार में? हम दुखी कब होते हैं? शमशान घाट में जब दूसरे के पास जाना पड़ता है तो घड़ी देखते हैं। चौथे पे जाना पड़े 10 मिनट जाना पड़ता है, घड़ी देखते हैं, यार कितना टाइम लग गया। और जब अपने घर में किसी की मृत्यु होती है तो क्या हाल होता है? फर्क कहां पर है? स्वार्थ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो मेरा अक्षर है ना, मेरा, सारी तकलीफ की जड़ ये है। जितना मेरा मेरा करेंगे उतना ज्यादा रोना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वार्थ, हम स्वार्थी हैं। हम मोह के रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो ऊंट वाला दृष्टांत याद कर लिया करो। महापुरुष बैठे हैं, एक आदमी 100 ऊंट लेकर जा रहा है, 99 ऊंटों को खूंटे से बांध दिया, एक को लेकर खड़ा है, तूफान चल रहा है। महापुरुष कहने लगे, भाई आजा बैठ जा। लेकर खड़े ऊंट को, कहने लगे नहीं तूफान चल रहा है, ऊंट भाग जाएगा। महापुरुष कहने लगे, काम कर, उसे कौन सा पता है, जानवर है, ऐसे एक्टिंग कर, रस्सी बांधने की, खूंटा गाड़ने की। उस व्यापारी ने ऐसे ही किया, ऊंट के गले में रस्सी बांधने की एक्टिंग की, रस्सी है नहीं, खूंटा है नहीं, गाड़ने की एक्टिंग की, ऊंट बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह हुई, सारे ऊंटों को खोला, इसे उठा रहा है, ये उठ नहीं रहा, डंडे मार रहे तो भी नहीं उठ रहा ऊंट। महापुरुष दूर से हंस रहे हैं, कहने लगे, भाई इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। व्यापारी कहता है, रस्सी कहाँ है? कहते हैं, उसे तो लगता है ना है, तूने रात को बांधी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खोल। व्यापारी खोलने की एक्टिंग करता है, खूंटा खोड़ा, रस्सी खोली, ऊंट खड़ा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, जिस प्रकार ये ऊंट, ये जानवर बैठा है, सारा संसार इसी प्रकार है। हमारे गले में कोई रस्सी नहीं है कि मेरा बेटा है, मेरी घरवाली है, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, पर हम मोह के चक्कर में बैठे हुए हैं बंद कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठ नहीं रहे। मेरा इस खेल को समझना अगर है तो इस मेरा से ऊपर उठे बिना यह खेल नहीं समझा जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ये उठेंगे कैसे? क्या मेरे कहने से? मैं कहूंगा भाई मेरा मेरा मत किया करो, मैं खुद करता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं, एक ही ताकत है जो हमारे अंदर इस मेर को मिटा सकती है। क्या है वो? सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु
तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज के जो शब्द के विचार है ना साथ संगत जी, असल में हमारे मेरे जैसों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि ये विचार वो है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठकर कुछ पाना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा तो हर काम के पीछे सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। अगर अमृत ले उठेंगे क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या धंधा बढ़ेगा? क्या बरकत पड़ेगी? क्या बच्चे पास हो जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? हमारी सोच यहीं तक है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी जुड़े हुए हैं भक्ति में, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हाथ जोड़कर आकर खड़ी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि कोई सेवा दो। बाबा अनंत सिंह जी उठे, दौड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दौड़ पड़े बाबा महाराम सिंह जी के पास, बुच्चो साहब, कहने लगे बचाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे शक्तियां आकर खड़ी हो गई, कहती हैं कोई काम बताओ, कोई सेवा दो, जिसका चाहो सवार दे, जिसका चाहो बिगाड़ दे, ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी पूछते फिर तुझे और क्या चाहिए? ये सिमरन भक्ति क्यों कर रहा है? ये ऋषि मुनि ये तप कर रहे हैं इतने जन्मों से, यही पाने के लिए तो कर रहे हैं कि शक्तियां आ जाएं, दुनिया बस में हो जाए। किसी का सवार दिया, किसी का बिगाड़ दिया, जो चाहे किसी को दे दिया, दुनिया पैरों में आके गिर पड़े, यही तो चाहते हैं सब। तुझे क्या चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे इन शक्तियों को अपने चरणों में रखो, मुझे शक्तियों का दाता गुरु नानक चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे शक्तियों का दाता चाहिए, शक्तियां नहीं। अब हम होते हैं, हम तो खुश हो जाते शक्तियां आ गई, जो चाहे करते जाओ, दुश्मनों का खत्म कर दो, दोस्तों को बढ़ा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हम स्वार्थी हैं। एक बात बार बार दास कह रहे हैं, गुरु के आगे बेनतियां करो, और बेनती खाली बातों की नहीं। हमने अभी अभी समझा कि अगर ये मैं खत्म करनी है, मेरा खत्म करना है, इन चीजों से ऊपर उठना है, नित्य नेम पक्का करो। दास बार बार कहता है हाथ जोड़कर, ये सत्संग करने का लाभ ही उनको है 40 के दिन के बाद जिनका नेम बन जाए पक्का, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं सब। दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं चलो पास नहीं, सफल तो हो ही रहा है, जितना समय बैठे हो सफल है, पर अगर इस खेल को समझना है, अगर आगे बढ़ने की इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है कि जन्म मिला क्यों है, तो नित्य नेम बढ़ाओ। गिनती कम से कम गिनती रखो 13 माला, उसके बाद छोड़ दो उस गिनती को भी, गिनती से परे हो जाओ। करो 50 100 अनगिनत करो, क्योंकि ये अनगिनत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय निकालो, दुकान में से, घर में से, समय है हर एक के पास, कोई ये मत कहे समय नहीं है, हमारी मर्जी है हम उसे खर्च कहाँ पे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरूर अपने लिए समय निकाला करो, अकेले चले जाया करो हरमंदिर साहब, अकेले चले जाया करो हेमकुंड साहब, अकेले। घर वालियां सब नाराज नहीं होना मुझ पे,
अकेले का मतलब होता है भले उनको साथ में लेके जाओ, पर फिर वहां पे कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं, ना बातचीत, केवल सिमरन, केवल सिमरन करके देखो क्या मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये करने की बातें नहीं, सुनने की बातें नहीं, करने की बातें करके देखो। 10-10, 12-12 घंटे सिमरन में बिता के देखो। अपने लिए साल में कुछ समय तो निकाल लो। इतना सब सुनने का बाकी लाभ ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो दो पंक्ति अपनी। आत्म रास संसारा साचा खेल तुम्हारा। आत्म रास संसारा साचा खेल तुम्हारा। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सच के धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना गुरु हरराय साहब जी के समय की। साथ में गुरु नानक एक सिख आया सेवा में, जिसका नाम आया भाई पुंगरू। ऐसी अनथक सेवा की, ऐसी अनथक सेवा की कि गुरु हरराय साहब जी की प्रसन्नता ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी ने कहा अब तू जा अपने गांव और संगत को गुरु के चरणों से जोड़। जो संगत भटकी हुई है, जितना भी इतिहास पढ़ेंगे ना साथ संगत जी, जितने भी सिख हुए हैं हर गुरु के समय, जब उनकी सेवा को फल लग जाता था ना, तब वो कहते थे अब तू जा संगत को जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बोलेगा तू शक्ति गुरु नानक की बरतेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए दास हमेशा सबसे कहता है कि दूसरों को जोड़ो। खुद जुड़ना और बात है, दूसरों को जोड़ोगे गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, बैठता हर कोई है कहीं ना कहीं बैठ, या कोई मिलने आता है, बातों बातों से उसे पेन ड्राइव दे दो, बातों बातों से उसे यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दो, अमृतवेला देख, कथा सुन, हो सकता है कोई जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फल आपकी झोली में, सारे जीवन का फल आपकी झोली में। और जो संगत को जोड़ता है किसी भी तरह से, कोई गाड़ियों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जो सेवा कर रहे हैं हर प्रकार से, गुरु नानक की उन पर विशेष कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई पुंगरू गरीबी में रहता है, जितनी जरूरत है उसके घर में साधु सन्यासी सब जो भी गांव में आता है, कोई पूछता है कहाँ ठहरू, कहते हैं भाई पुंगरू के पास चले जाओ। वो बहुत सेवा करती है, तन मन धन से सेवा करते हैं, पूरा दिन खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और आए गए साधु संत की सेवा करते हैं और संगत को जोड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक फकीर आ गया, बड़े प्यार से भोजन खिलाया भाई पुंगरू ने, रात को बिस्तरा लगा कर दिया, उन्होंने आराम किया। सुबह जाते वक्त फकीर कहता है ये लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई पुंगरू कहता है ये क्या है? कहने लगे ये रसायन है, पारस,
लोहे का लगाओ, सोना बन जाएगा। इतनी सेवा करते हो लोगों की, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा खुलकर सेवा करो लोगों की, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। भाई पुंगरू जी ने हाथ जोड़ दिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बार बार विचार किया करो, अगर वहां हम हो तो क्या करते हैं, अपना आईना सामने आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें तो पता चल जाए उस फकीर के पास पारस है, रात को शायद कत्ल ही कर दे, उसको मांगने की जरूरत भी न पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, संगत और गुरु की वाणी ये आईना होती है, अपना चेहरा दिखा देते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और जहाँ पर भी खड़े हैं गुरु को अरदास करें, पातशाह आगे बढ़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई पुंगरू ने हाथ जोड़ दिए, भाई हमें इन पत्थरों की जरूरत नहीं, आप बस आप सेवा से प्रसन्न हुए तो आशीष देकर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फकीर कहता है, तुम्हें ज्ञान नहीं, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितना बेशकीमती चीज है, ये संसार में दुर्लभ है, किसी के पास नहीं होती है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इसकी कदर नहीं है। अरे गृहस्थी हो, तुम्हारे काम आएगी, ले लो। भाई पुंगरू साध संगत जी, ऐतिहासिक घटना है ये। नीचे से पत्थर उठाए, पत्थर मुट्ठी में बंद किए, मुट्ठी खोली तो सारे पत्थर सोने के बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फकीर हैरान हो गया, कहने लगा इतनी शक्ति आप में कि पत्थर को हाथ लगाया सोना हो गया, तो फिर इस गरीबी में क्यों जीते हो, काम क्यों करते हो खेतों में। भाई पुंगरू कहने लगा, फकीर ये बेच डालकर फकीरी नहीं सीखी जाती है, फकीरी नाम ही इस अवस्था का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो इन पत्थरों से ऊपर उठे, सेवा भाव रखे, अपनी मेहनत का खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु को सिख को समझता क्या है। फकीर को कहने लगे, भाई पुंगरू जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। सत्संगी जी और दास यहाँ पर एक बात बता दे, कई लोग आते हैं कि हमारा धंधा नहीं चलता, हमारे घर में तकलीफ है, गरीबी है। बाबा नंद सिंह जी के वचन पल्ले बांध लो। जो व्यक्ति अमृत वेला संभालता है, गुरु को दे देता है 2.5 घंटे अमृत वेले, वो मिट्टी को भी हाथ डालेगा, वो सोना हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर पूछो मत ये काम करूं या वो काम करूं, जो भी काम करो बरकत गुरु ने डालनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विश्वास तो करो, करके तो देखो। इतने लोग हैं यहाँ पर जो मुझे आके बताते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हुए हैं। मैं कहता हूं उनसे कि बताओ लोगों को जाकर कि क्या होता है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। हम जो ये साखियां सुन रहे हैं, कुछ परसेंट तो हमारे अंदर आए, कुछ परसेंट तो आए। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पूरा ऊपर नहीं उठ सकते, कुछ परसेंट तो काबू में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ परसेंट कम से कम पता क्या होता है, मानो बाहर हम सारे गलत काम करते हैं, बाहर बुरी नजर से भी लोगों को देखते हैं, पराई स्त्री पराई मर्द को हम बुरी नजरों से देखते हैं। कम से कम गुरु घर में आके तो ये ना करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना परसेंट तो आ जाए। अगर इतना भी नहीं आया तो क्या मतलब है सत्संग का। बाहर अगर लालची है, यहां पर आकर तो लालच खत्म कर दें, एक घर तो छोड़ दें, कुछ परसेंट तो आगे बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक की मेहर करे। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। आत्म रास
बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन सतर हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतारा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह कर्क करत हूँ कब हो मैं मिल तो दे
कर सबों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापन भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जाने महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेते तुमरा लखा न जाय पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा समट प्यो संकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहारो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना समरस में सुख मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया जिनको से नाम रखे लागे करे नानक दस को आदित करे नदवाजे अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुप्ते जानी सुनते पुनि
कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद धूरे सलोक पवन गुरु पानी पीता माता पिता मात दूसरा बधाई गाया खेले सगल गात चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया वाहेगुरु 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 ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।